Hello students, we are continuing holding company accounts. So in this lecture we will discuss adjustment of mutual owings, which also means transactions which are held in between holding and the subsidiary company. So let us see what are major transactions of mutual owings. Number one is sale of goods or asset by one company to other company. Second is debtors versus creditors. Number third is bills receivable versus bills payable. Fourth is debentures of a subsidiary company held as investment by holding company. It means debentures are issued by a subsidiary, but some of these debentures are held as investment by holding company. Fifth one, we will see debentures or preference shares of a holding company held as investment by subsidiary company. So we have to discuss what is accounting treatment of these transactions in books of consolidated balance sheet. Let us start one by one. Number one is sale of goods or asset by one company to other company. So in this case, what happens? So one company may sell goods or asset to other company at a profit or a loss. So one company may sell goods or asset so at a profit or loss so to other company. And these goods or asset so these are held by purchasing company. So in case of goods, these are held as unsold stock. So these are held as unsold stock. Or asset may be held to use in business. It means or it will be held as asset. But in this case, one company has a charge to profit and loss. So in this stock or asset, this profit and loss is included in this value of stock or asset. But when we prepare consolidated balance sheet, we know that after consolidation, holding subsidiary are same company, or we can say that same companies of the same group. So in this case, what is our objective? So for this purpose, we have to eliminate this profit and loss which is included in this unsold stock or asset. So it means our objective is so we have to eliminate the amount of so this profit or loss which is included so in a value of so this asset और अनसोल्ड स्टॉक इट मीन्स परचेजिंग कंपनी के बुक्स में जो भी एसेट की वैल्यू है और जो भी आपका अनसोल्ड स्टॉक है उसमें जो भी आपका अमाउंट है प्रॉफिट या लॉस का उसको आपने करना है एलिमिनेट. इसका रीजन है बिकॉज वन कंपनी कैन नॉट चार्ज प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम इटसेल्फ. अब होल्डिंग सब्सिडी आपकी सेम मानी जाएंगी बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग योर कंबाइंड बैलेंस शीट. So it means reason is because so one company cannot so charge profit or loss so from itself. इट मीन्स जब आप वैल्यू शो कर रहे हैं ऐसे कि अनसोल्ड स्टॉक की एक हाई वैल्यू और एक लो वैल्यू इट मीन उसमें प्रॉफिट या लॉस हमारा इंक्लूड है. तो इस केस में आपकी दो तरह की ट्रांजेक्शन होती हैं. फर्स्ट एच ने सेल की है एस को या फिर एस ने सेल की है एच को. तो देखते हैं इनको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन से. तो इसमें किस तरीके से हम इसको एडजस्ट करेंगे. So it means there are two possibilities. One is a downstream transaction. Second is a upstream transaction. So downstream means एच ने गुड्स या एसेट सेल किए हैं सब्सिडियरी कंपनी को. तो इट मीन्स अब जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा दैट इज अर्न बाय होल्डिंग कंपनी. सो इन दिस केस वी कैन से दैट प्रॉफिट और इट मे बी लॉस आल्सो सो इज दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय होल्डिंग कंपनी. वी कैन से दैट बाय एच लिमिटेड. तो इट मीन्स इस केस में जो भी प्रॉफिट या लॉस है आपका वो आपको एलिमिनेट करना है फ्रॉम होल्डिंग पी एंड एल. तो इसकी देखो क्या एंट्री बनेगी. तो इसकी हम एंट्री पास करते हैं इन बुक्स ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. ये हम कर रहे हैं बुक्स ऑफ एच कंपनी फॉर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. तो एच ने जब गुड्स सेल की थी सब्सिडरी को उसमें प्रॉफिट उसने चार्ज किया था तो उस प्रॉफिट को आप एलिमिनेट कर लीजिए. तो उसकी एंट्री बन जाएगी होल्डिंग कंपनी बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड. क्योंकि ये प्रॉफिट देखो होल्डिंग की पी एंड एल में इंक्लूड है उसको डेबिट कीजिए और एक स्टॉक है उसके अगेंस्ट आप बना लीजिए रिजर्व टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट.
और अगर ये प्रॉफिट आपका एसेट में इंक्लूड है तो आप डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं और टू एसेट अकाउंट, तो एसेट की वैल्यू में से ये माइनस हो जाएगा। तो सिर्फ आपने वही लेना है जितना अमाउंट हमारा इंक्लूड है इन अनसोल्ड स्टॉक में या वैल्यू ऑफ एसेट में। इसको हम ये भी कहते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज का मीनिंग होता है एच ने कुछ सेल किया, एस को प्रॉफिट रियलाइज किया, बट एस ने अभी आउटसाइड पार्टी को सेल नहीं की है। इट मीन ये प्रॉफिट अभी भी हमारी बुक्स में ही है, तो ये हमने रियलाइज नहीं किया है फ्रॉम सेल टू आउटसाइडर से, तो इसलिए इसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आपकी होती है अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन। तो इसमें सब्सिडियरी कंपनी सेल करती है गुड्स होल्डिंग कंपनी को, या एसेट की सेल कर रही है। इसमें अब जो प्रॉफिट या लॉस होगा गेट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सब्सिडियरी कंपनी। तो ये जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, प्रॉफिट या लॉस ये सब्सिडियरी की बुक्स में एडजस्ट हो रहा है, इज रिकॉग्नाइज्ड इन P&L, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। और जैसे हमने देखा है जब हम कंसोलिडेशन करते हैं कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है सब्सिडियरी का, वो हम डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट्स में, होल्डिंग का कितना शेयर है और माइनॉरिटी का कितना शेयर है। तो इसलिए इस केस में अब आपकी क्या एंट्री होगी, एंट्री इसी की बुक्स में हो रही है, होल्डिंग की बुक्स में। अब इसमें देखो इस प्रॉफिट या लॉस में जो एच का शेयर है वो एच के P&L को डेबिट कीजिए आप, एंट्री बन जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, तो दिस इज एच शेयर। और जो माइनॉरिटी का शेयर है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में डेबिट कीजिए, तो ये हमने माइनॉरिटी से रिकवर करना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड। ये है माइनॉरिटी का शेयर टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, और स्टॉक के अगेंस्ट आप रिजर्व बना लीजिए। और एक एसेट का केस है, एसेट में आप डायरेक्टली भी एडजस्ट कर सकते हैं टू एसेट अकाउंट, तो इस तरीके से आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। अब देखिए कि आपकी ये तो मेन होता है जब प्रॉफिट हम ले रहे हैं। अब देखिए आपका लॉस का केस है, तो इट मीन्स इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ वी कैन से दैट गुड्स और एसेट दे आर सोल्ड एट लॉस। लॉस का मतलब है कि अब जो स्टॉक की वैल्यू है, एसेट की वैल्यू है, वो पहले ही हमने लो वैल्यू पर शो कर रखी है, तो अब आपको पास करनी है रिवर्स एंट्री। देन वी हैव टू मेक रिवर्स एंट्री। तो अब देखिए डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन में लॉस हुआ था होल्डिंग कंपनी को, तो आपने एंट्री करके नहीं है, तो जिस स्टॉक और एसेट अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट, तो उससे होल्डिंग का जो P&L है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये है आपकी डाउन स्ट्रीम के केस में जिसमें। लेकिन अपस्ट्रीम का केस है, उस केस में लॉस सफ़र हुआ था सब्सिडियरी कंपनी को और वो डिवाइड हो जाएगा होल्डिंग और माइनॉरिटी में, तो आपने एंट्री पास करनी है इस केस में स्टॉक और एसेट अकाउंट डेबिटेड। उसमें से देखिए आप माइनॉरिटी का कितना शेयर है ये आप क्रेडिट कीजिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, और जो होल्डिंग का शेयर है वो आप होल्डिंग के P&L में क्रेडिट कर दीजिए। क्योंकि हम होल्डिंग की बुक्स बना रहे हैं तो उसमें जो P&L का मतलब है ये होल्डिंग का बैलेंस है P&L का। पर इसमें एक कंडीशन है, जब हम लॉस में रिवर्स करते हैं इसको, उसका रीजन है लॉस इज टू बी रिवर्स्ड, बट लॉस को रिवर्स करने की एक कंडीशन है, तो बट एग्जैक्ट कंडीशन लॉस इज टू बी रिवर्स्ड, सो ओनली इफ सो फुल कॉस्ट कैन बी रिकवर्ड। तो इट मीन्स अब जो स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए, पहले तो आपने गुड्स सेल करी या ऐसे सेल की लॉस पर, अब उसकी देखो मार्केट वैल्यू कितनी है, लेकिन मार्केट वैल्यू आपकी ज़्यादा हो गई है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, तब हम कह सकते हैं कि उसकी फुल कॉस्ट रिकवर हो रही है। इट मीन्स इट आल्सो मीन्स दैट इज अवर नेट रिलाइजेबल वैल्यू। तो स्टॉक में होता है कि यदि आप स्टॉक को मार्केट में सेल करते हैं उससे जो वैल्यू रिलाइज होगी इसका नाम है नेट रिलाइजेबल वैल्यू, इट इज आल्सो कॉल्ड NRV। सो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट, जो भी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी ऑफ स्टॉक और एसेट, so only then we will reverse this loss। तो दिस वाज अबाउट फर्स्ट एडजस्टमेंट, जब हम गुड्स या एसेट को सेल कर रहे हैं एक प्रॉफिट के ऊपर या लॉस के ऊपर, उसमें दो केस है, डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन की और एक अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन। जो सेकंड आता है वह हमारी एडजस्टमेंट है डेटर वर्सेस क्रेडिटर। तो डेटर वर्सेस क्रेडिटर से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं ऑन सेल ऑफ गुड्स के ऊपर। तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, जैसे आप ले लीजिए डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम के केस में एच ने गुड्स सेल की हैं, सपोज कर लीजिए एस को। एच की बुक्स में देखो कॉस्ट प्राइस है आपकी 10,000, तो ये बुक्स हमने सेल की हैं एस को 12,500 के ऊपर।
अब इसमें से कुछ गुड्स हमारी अनसोल्ड हैं जो सब्सिडरी की बैलेंस शीट में अपीयर हो रही हैं, तो अब आपको मेंशन किया है एस हैज सो अनसोल्ड स्टॉक सो ऑफ ₹7500। तो आप देखेंगे इसमें होल्डिंग ने जब सेल की थी, होल्डिंग ने प्रॉफिट अर्न किया था 2500 का, वो था प्रॉफिट हमारा टोटल वैल्यू 12500 के ऊपर जो सेल प्राइस की। अब उसमें से जो एस की बुक्स में सेल प्राइस है अनसोल्ड स्टॉक की वो है 7500। तो आप कैलकुलेट कीजिए इसमें कितना प्रॉफिट अर्न किया है सब होल्डिंग ने, प्रॉफिट अर्न बाय होल्डिंग कंपनी। So we are calculating profit earned by holding company in this unsold stock if total value is 12,500। अब देखिए उसमें कितना प्रॉफिट है आपका 2500 जो डिफरेंस है। इफ वैल्यू स्टॉक इज 7500 then profit is this is 1/5 which is 1500। अब ये डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन है, सारा प्रॉफिट होल्डिंग ने अर्न किया था, तो हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे इन बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। So entry will be profit and loss account debited to stock reserve account। इट मीन्स एंट्री पास हो जाएगी आपकी 1500 से। तो इसका एडजस्टमेंट क्या होगी, इसको आप एच के पी एल में से माइनस कीजिए और ये हम स्टॉक में से डिडक्ट कर लेंगे। जो स्टॉक की वैल्यू है इट इज डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ स्टॉक। उससे स्टॉक में जो स्टॉक की वैल्यू है 7500 उसमें से जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब एक देखते हैं अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन का। इसमें देखो आपको मेंशन किया होगा एस ने सेल की है एच को, स्पोर्टल ओवर एस की बुक्स में सीपी है आपकी 10,000 और हमने सेल की बुक्स होल्डिंग कंपनी को एट 12,500। तो इट मीन्स प्रॉफिट इज अर्न्ड बाय सब्सिडरी कंपनी। तो अब आप देखें एच की बुक्स में है अनसोल्ड स्टॉक, सो एच हैज अनसोल्ड स्टॉक ऑफ ₹7500। अब इसमें प्रॉफिट अर्न किया है सब्सिडरी ने, तो लेट अस सी व्हाट इज प्रॉफिट which is made by subsidiary company। So in this unsold stock हमने सेम एग्जांपल लिया है, टोटल वैल्यू है 12,500। उसमें देखिए प्रॉफिट हो रहा है सब्सिडरी को 2500 का, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो व्हाट इज प्रॉफिट इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, सो हाउ मच इज प्रॉफिट इन 7500 दिस इज 1500। अब सपोज चलो आपको ये भी मेंशन किया है एच के पास जो शेयर्स हैं सब्सिडरी के, एच हैज शेयर्स ऑफ सब्सिडरी 80%, इट मीन्स 20% आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। तो अब ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूड है इन वैल्यू ऑफ स्टॉक विच इज हेल्ड बाय एच, तो उसको आप एलिमिनेट कीजिए। अब आपकी एंट्री बन जाएगी बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी में। तो दिस विल बी P&L अकाउंट डेबिटेड, जो एच का शेयर है माइनॉरिटी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक रिजर्व। तो अपने स्टॉक में से को माइनस करना है अमाउंट 1500 और अब देखिए उसमें एच का शेयर है 80%, सो दिस इज 1200 and 300 is your minority interest, this is your 80% and 20%। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये एच के पी में से माइनस हो जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में नेगेटिव बैलेंस शो करके है, अब ये डेबिट हो रहा है तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट में से डिडक्ट हो जाएगा और इसको स्टॉक में से माइनस कर लीजिए आप जब फुल की बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो सेकेंड एडजस्टमेंट लीजिए ऑफ डेटर वर्सेस क्रेडिटर। इस केस में जैसे भाई कंपनी ने गुड्स सेल किए दूसरी कंपनी को क्रेडिट के ऊपर, उससे क्रेडिटर अराइज हो जाते हैं उनकी बुक्स में। अब सपोज लीजिए आपको जो कोई मेंशन किया है ये सब्सिडरी कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट हम ले रहे हैं एंड किसी होल्डिंग कंपनी, तो दीज आर द बैलेंस शीट्स जिसकी लाइबिलिटी साइड एसेट साइड। अब सपोज लीजिए होल्डिंग कंपनी की बुक्स में डेटर्स अपीयर हो रहे हैं, तो उसकी मनी ड्यू है फ्रॉम एस कंपनी, दिस इज ड्यू 5,000 रुपीज। अब उनके सब्सिडरी की बुक्स में क्रेडिटर्स अपीयर हो रहे हैं इन फेवर ऑफ एच कंपनी, दिस इज आल्सो 5,000 रुपीज। तो जब आप कंबाइन करेंगे दोनों की बैलेंस शीट को कंसोलिडेटेड की बैलेंस शीट में, ये क्रेडिटर्स में मर्ज हो जाएंगे होल्डिंग की बैलेंस शीट में। तो इसमें डेटर क्रेडिटर अब जो है आपने अपने आप से ही पैसे लेने हैं और अपने आप को ही आपने पे करने हैं, तो इसको आपने एलिमिनेट करना है। तो इट मीन्स हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव है जो कॉमन अमाउंट है हमारा कॉमन अमाउंट इज को भी एलिमिनेटेड। तो उसके लिए क्या एंट्री पास होती है इन बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, क्योंकि हम कंसोलिडेशन जो करते हैं वो करते हैं होल्डिंग की बुक्स में,
बुक्स ऑफ होल्डिंग, वहाँ पर आपको एक एंट्री पास करनी है। क्रेडिटर कैंसिल कीजिए आप। ये किसके क्रेडिटर हैं? सब्सिडरी कंपनी के, टू डेटर्स, दिस इज ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो क्रेडिट में आप ऐसा एक मेंशन कर सकते हैं, और ये भाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्रेडिटर्स आपके डेबिट हो जाएंगे, डेटर्स हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस एग्जाम्पल में है ₹5,000। अब कई बार होता है इनकी जो बैलेंस शीट्स होती हैं उनमें ये अमाउंट भी आपको डिफर कर रहे हैं। तो सेकंड केस में इफ अमाउंट इज डिफरेंट, तो वो कब होता है? नॉर्मली कई बार होता है कि सब्सिडरी ने कुछ पेमेंट कर दी है अपने क्रेडिटर्स को, पर अभी होल्डिंग को रिसीव नहीं हुई मनी। फॉर एग्जांपल, अब क्रेडिटर्स का बैलेंस आपको दिया है 3000 सब्सिडरी की बुक्स में, बट होल्डिंग की बुक्स में डेटर्स हैं 5000 के। तो कई बार ये पेमेंट होती है साल के एंड में, बट ये पेमेंट अभी एच को रिसीव नहीं हुई, उसको हम कहते हैं किसी कैश इन ट्रांजिट। जब आपका अमाउंट डिफरेंट है ना, तो नॉर्मली आप देखोगे क्रेडिटर्स ही हमारे कम होते हैं, क्योंकि क्रेडिटर्स ने पेमेंट कर दी है पर अभी डेटर्स को रिसीव नहीं हुई है। तो आपने एंट्री को क्या करनी है? क्रेडिटर्स जितने हैं वो कैंसिल कीजिए आप। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड, इस केस में है 3000, और डेटर्स कैंसिल कीजिए आप। डेटर्स है हमारे जैसे जो 5000, और जो 2000 का डिफरेंस है वो हम शो करते हैं कैश इन क्रेडिट। तो ये मीन्स ये ऐसे बन जाएगी कैश इन क्रेडिट, जिसे जस्ट लाइक कैश बैलेंस है। अब ये हम एसेट में शो कर देंगे। तो डेटर्स में इसको आप एलिमिनेट कीजिए 5 से, क्रेडिटर्स 3, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हम शो करेंगे कैश इन ट्रांजिट एज एसेट बाय 2000 रुपीज। तो नेक्स्ट देखते हैं बिल्स रिसीवेबल वर्सेस बिल्स पेबल की एडजस्टमेंट। फिर नंबर 12 लीजिए, एडजस्टमेंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल वर्सेज बिल्स पेबल। इसमें भी देखो, हो सकता है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को बिल इशू किए हैं, या एक कंपनी ने ड्रॉ किए हैं। तो आप देखेंगे जैसे एस की बैलेंस शीट है और एच की बैलेंस शीट है, दीज आर बैलेंस शीट्स। एस की बुक्स में सपोज अपीयर हो रहे हैं बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम एच 10,000, तो उसमें ये अपीयर हो जाएंगे बिल्स पेबल। एच की बुक्स में अपीयर हो रहे हैं बिल्स पेबल इन फेवर ऑफ एस, जिसे कि 10,000। तो ये भी म्यूचुअल होंगे, इसको भी डेटर रेगुलर की करें आप, कैंसिल करके दोनों की बुक्स में। तो फर्स्ट केस है यदि इनका अमाउंट सेम है, इफ अमाउंट इज सेम, आपकी नॉर्मल एंट्री बन जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। आप एसेट भी रिमूव कर लीजिए और लाइबिलिटी भी कैंसिल हो जाएगी, दोनों 10,000 से। लाइबिलिटी डेबिट हो गई है, एसेट को हमने कर दिया क्रेडिट। इट इज एंट्री आल्सो डन इन बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग की बुक्स में ही एंट्रीज हो रही हैं। तो इसमें भी हो सकता है कई बार आपका अमाउंट डिफरिंग है। अब इसमें डिफर क्यों करेगा? कई बार होता है जिसके पास बिल्स रिसीवेबल हैं उसने कुछ बिल्स डिस्काउंट करवा लिए हैं। तो इट मीन्स इफ सम बिल्स रिसीवेबल हैव बीन डिस्काउंटेड, तो कुछ बिल आपके डिस्काउंट हो गए हैं, उस केस में जो अमाउंट होगा वो डिफर कर जाएगा, अमाउंट के डिफरेंस। सपोज अब आपको मेंशन किया है ऐसे हैज डिस्काउंटेड बिल्स रिसीवेबल, अब आपको सपोज मेंशन किया है ऐसे डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल ऑफ 3000, तो उस केस में एस की बुक्स में बिल्स रिसीवेबल अपीयर होंगे 7000 से। तो इस केस में आपको क्या एडजस्टमेंट एंट्री करनी है? इसमें कैश इन ट्रांजिट नहीं आएगा, और इसमें आप जो कॉमन अमाउंट है उसी को आप एलिमिनेट कीजिए। तो ओनली कॉमन अमाउंट इज एलिमिनेटेड। तो आपकी एंट्री बन जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बाय हाउ मच अमाउंट। अब जो कॉमन अमाउंट है आपका जिसे कि 7000 ओनली, 3000 के बिल डिस्काउंट हो गए हैं। तो उसमें जो क्रेडिटर्स हैं एच की बुक्स में जो बिल्स पेबल है, एच ने को फुल पेमेंट करनी है, जिसमें से 7000 की पेमेंट वो जाएगी एस को, और 3000 की जाएगी बैंक को, क्योंकि एच ने बिल्स बैंक से डिस्काउंट करवा लिए हैं। लेकिन एच के लिए तो फुल लाइबिलिटी अपीयर हो रही है, तो इसलिए सिर्फ जो 7000 कॉमन हमारी लाइबिलिटी है वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट। तो फोर्थ एडजस्टमेंट से आपकी बैंक से सब्सिडरी कंपनी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट बाय होल्डिंग कंपनी। It means we can say that debentures are issued by subsidiary company, but out of this some debentures are purchased by holding company. It means these are held as investment by holding company. तो let us see balance sheet of subsidiary company। इसमें देखो आपको मेंशन किए हैं
इसने डिबेंचर इशू किए हैं, सपोज कर लो 12% डिबेंचर्स, सपोज जिसे जो 1 लाख रुपीज। अब आप देखेंगे बैलेंस शीट है होल्डिंग कंपनी की, बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी, इसमें से कुछ डिबेंचर होल्डिंग ने परचेज किए हैं, तो वो उसके लिए अपीयर होंगे एज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अपीयर हो रही है आपकी 12% के डिबेंचर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ब्रैकेट में आपको दिया है फेस वैल्यू। उस 1 लाख में से सपोज 20,000 के डिबेंचर होल्डिंग ने परचेज कर लिए। अब इसने परचेज किए मार्केट से, एक मे बी एक हाई कॉस्ट और एक लो कॉस्ट। सपोज आपने परचेज किए हैं एट कॉस्ट ऑफ 18,000, ये आपकी कॉस्ट आ गई रुपीज में। तो इसको आपने एलिमिनेट करना है, तो जब इन्वेस्टमेंट है होल्डिंग की बुक्स में, तो उसकी जो कॉस्ट है किसी लेस और फेस वैल्यू ज़्यादा है, तो पहले पॉइंट तो ये है कि जो डिफरेंस आएगा आपका इन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इट्स फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मीन्स जो भी पेड अप वैल्यू है। अब ये होल्डिंग की बुक्स में इन्वेस्टमेंट है, जैसे होल्डिंग के पास इन्वेस्टमेंट होती है शेयर्स में, तो उसका जो डिफरेंस होता है इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट का और जो भी उसकी फेस वैल्यू होती है, पेड अप वैल्यू या ट्रू वैल्यू जो होती है, वो हम ट्रांसफर करके हैं गुडविल या कैपिटल रिजर्व में। तो इस केस में भी जो डिफरेंस है दिस विल बी एडजस्टेड इन गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो इस केस में गुडविल राइज होती है जब कॉस्ट हमारी ज़्यादा होती है। इट मीन्स गुडविल तो arises when cost of investment is in debenture is greater than face value, या जो भी इसकी पेड अप वैल्यू है। और एक मे बी कैपिटल रिजर्व राइज होते हैं इफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इट्स फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू। तो जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम डिबेंचर में से रिड्यूस कर देंगे 20,000, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी 18,000, डिफरेंस चला जाएगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व में। फिर आती है आपकी एडजस्टमेंट व्हेन डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी मींस इशू बाय होल्डिंग बट हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट बाय सब्सिडरी कंपनी। नेक्स्ट आपकी एडजस्टमेंट है डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर इशूड बाय होल्डिंग कंपनी बट हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट बाय सब्सिडरी कंपनी। तो आप देखेंगे जैसे बैलेंस शीट है एस कंपनी की, उसकी बुक्स में अब इन्वेस्टमेंट्स अपीयर हो रही हैं। अब एक आप देखेंगे बैलेंस शीट है होल्डिंग कंपनी, अब उसने डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं। सपोज कर लीजिए इसकी बुक्स में है 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹1 लाख। अब इसमें से कुछ प्रेफरेंस शेयर जो हैं सब्सिडरी के पास हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, तो इसकी फेस वैल्यू है सपोज 30,000, तो इसने परचेज किया कि एट कॉस्ट ऑफ 35,000। तो इस केस में अभी डिफरेंस आएगा कॉस्ट में और इसकी पेड अप वैल्यू में, वो आपने एडजस्ट करना है सब्सिडरी कंपनी की P&L अकाउंट में। तो इट मीन्स इसको हम ये कहते हैं कि पहले सब्सिडरी की बैलेंस शीट को ना रिवैल्यू कर लीजिए। तो इन्वेस्टमेंट विच इज हेल्ड बाय सब्सिडरी कंपनी एस, इसको आपने करना है इज रिवैल्यूड सो एट इट्स पेड अप वैल्यू। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर फुली पेड होते हैं, तो इसलिए हम उसको पेड अप वैल्यू को फेस वैल्यू भी कह देते हैं। और रिवैल्यू करने से जो भी डिफरेंस आएगा, तो एनी डिफरेंस, तो वो आपका गेन या लॉस माना जाएगा। तो उसको आपने एडजस्ट करना है टू बी एडजस्टेड इन करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। इसमें जो आपने इस साल का प्रॉफिट कैलकुलेट किया सब्सिडरी का, उसमें ये प्लस माइनस कर दो। जैसे इसमें जो कोई इन्वेस्टमेंट में हमें अब लॉस हो रहा है, जब आप इसको रिवैल्यू करोगे 30,000 पे, तो 5,000 का लॉस आपने सब्सिडरी के P&L में से माइनस कर देना है। अब जो बैलेंस प्रॉफिट आएगा, इतनी जो रिवाइज प्रॉफिट है वो डिवाइड होगा होल्डिंग और माइनॉरिटी में। इतनी इसका बेसिक पर्पज ये है कि जो रिवाइज जो प्रॉफिट है ऑफ सब्सिडरी, तो ये आपका डिवाइड होता है इन बिटवीन एच में और माइनॉरिटी में। इस लेक्चर में हमने डिस्कस की एडजस्टमेंट्स ऑफ म्यूचुअल लोन्स, उनको किस तरीके से आपने कंसोलिडेट की बैलेंस शीट में एडजस्ट करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन एग्जांपल बेस्ड ऑन म्यूचुअल लोन्स से। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड यू कैन रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स आल्सो। थैंक यू।